Welcome back. You're watching Battleground 2018. This is Rajya Sabha television. Time for the headlines. In Rajasthan, Prime Minister Narendra Modi addresses 3 rallies, says nation is paying for the mistakes that the Congress made when it was in power. Party bigwigs also address voters in various parts of the state. Voters in Vikramabad narrate the electoral issues in their region. Youth highlight joblessness as the biggest issue for them in the upcoming assembly election. RSTV's Vote Yatra arrives in Rajasthan's Amer Fort, where our correspondent Mohammad Fateh talks to local residents to get a flavor of the election season. In Kota city of Rajasthan, famous for its coaching centre, students tell Ravindra Sharon what their expectations are from the next government. In Telangana's Ramagundam, Rajat Kane asks resident coal workers about their issues. In Hyderabad, Kriti Mishra takes stock of the state of startups and their issues. And in our big story, with less than 24 hours to go before the end of campaigning in Rajasthan, a look at how the situation is fast changing on the ground ahead of the election in the state. Well, it's time for our big story now, where today we will focus on Rajasthan. Campaigning for the 200-member assembly elections in Rajasthan will end tomorrow. With just a day left before the code of conduct kicks in, the big guns of both the BJP and the Congress campaigned in the state today. Prime Minister Narendra Modi has addressed 3 rallies in Rajasthan today, while Congress President Rahul Gandhi also addressed 3 public meetings. Rajasthan has a history of voting out the ruling party every 5 years. The BJP is hoping to create history this time by changing the trend and coming back for a second consecutive term. In the last polls in 2013, the BJP got a massive mandate, winning 163 out of the 200 seats. The party's vote share stood at 46.03%, a massive rise from the 34.27% it got in the 2008 assembly polls. The Congress, on the other hand, had won only 21 seats in the last elections. Political analysts hint at a tough fight between the Congress and the BJP in the state this time around. There are many who say that although the Congress has an edge thanks to anti-incumbency, the party has not been able to make full use of the loss of popular support for the BJP. They believe that the BJP's popular support may be waning, but the party is strong at the grassroots. Well, joining us for a chat this evening on the big story are Sanjay Singh, political editor of the First Post, and Hitesh Shankar, editor, Panchanya. Thank you to the both of you for joining us on the program. Kavindra, before that, our correspondent is joining us on the phone line as well. ज़मीन पर क्या चल रहा है? मोहम्मद फातेह टीपू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फातेह, जिस तरीके से आपने अलग-अलग इलाकों में गए और मुद्दों से लेकर जो नेताओं के वादे हैं या पार्टियों के दावे हैं, उन सबको देखा है, क्या इस बार का चुनाव वहां पर चेहरा ज्यादा बड़ा है या फिर कहीं मुद्दे और पार्टियां उससे ज्यादा बड़ी हैं? क्या है बेस यहां पर इस बार? जी कविन, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल 24 घंटे से कम वक्त बचा है चुनाव के लिए। यहाँ पर दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अगर हम अपने दौरों की बात करें, वोट यात्रा की बात करें, तो अजमेर से लेकर के जयपुर, फिर दौसा, पुष्कर होते हुए वापस टोंक और सवाई माधोपुर में जो दौरे हमने किए, उसमें कहीं ना कहीं मुद्दे अभी फिलहाल सेकेंडरी नजर आ रहे हैं और पार्टी जो आपस की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि नजर आ रहा है। कभी इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम टोंक की बात करें, कल मैं टोंक में था और टोंक में जिस तरह से वहां का 40 साल का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार
सचिन पायलट जैसे, चूंकि मतलब किसी गैर मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने वहां से उतारा, और बीजेपी ने 40 साल में पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको वहां पे उतारा। तो एक बहुत बड़ा उलटफेर और कांटे की टक्कर वहां पे नजर आ रही है। और चूंकि टोंक का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, उसके अलावा अगर हम विकास की बात करें तो विकास से काफी पिछड़ा है विकास के मायने में टोंक। वहां पे ना कायदे की सड़कें हैं, ना उच्च शिक्षण संस्थान है। अगर लोगों को पढ़ना होता है तो जयपुर और कोटा का रुख करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राजस्थान का एकमात्र जिला है जो वहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। तो जनता के अपने मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने वादे और दावे हैं कविंद्र, लेकिन यहाँ पे मतदाताओं के चेहरे पे एक खुशी जरूर ये हमने देखी कि यहाँ पर चूंकि एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, यूनुस खान भी सीएम के बाद के नेता माने जाते हैं, आरएसएस से उनके अच्छे संबंध है। बीजेपी ने एक तुरूप का इक्का यहाँ पर फेंका है क्योंकि वो डीडवाना से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको जैसे ही सचिन पायलट का ऐलान हुआ उसके बाद उनको यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स 55,000 की संख्या में है और सचिन पायलट के समुदाय के जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 32,000 की संख्या में है, ऐसे बीजेपी का ये दांव कहीं ना कहीं ये वहां की आवाम में जो बातचीत अगर मोहम्मद फतेह, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट्स के अलावा अगर मैं कहूँ ओवरऑल बात करें, दोनों ही दलों के लिए इस बार जो है भितरघात में कहूं या फिर जो नाराज कार्यकर्ता है जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो एक बड़ी समस्या थे। जमीन पर क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों दलों के लिए बड़ी मुसीबत हैं या फिर किसी पार्टी ने उनको मैनेज किया है, इन दलों ने मैनेज कर पाए हो अब तक? नहीं, ये पार्टियों के लिए भी मुसीबत है, लेकिन फिलहाल अगर मैं मीणा समुदाय की बात करूं, जो पूर्वी राजस्थान के बेल्ट में इनका काफी असर होता है। मैंने कल इनके जो मीणा समुदाय के जो नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने पूरा दावा किया कि हम सरकार में आने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने और भी जो नेताओं से बात किया बीजेपी की, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी कहा कि भाई हमने जो माल मनोबल था उसको हमने लोगों से बैठ करके बातचीत कर लिया है, उनसे लोगों को समझा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये तो कविंद्र आप कह रहे हैं, ये पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन मुद्दे अपनी जगह कायम है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर चूंकि हाई प्रोफाइल सीट जो है टोंक की बात फिर मैं करूंगा, यहाँ पे चूंकि जो विकास है, विकास कोसों दूर है, लेकिन चूंकि दोनों हाई प्रोफाइल नेता है, यूनुस खान भी यहाँ पे हाई प्रोफाइल है और सचिन पायलट भी हाई प्रोफाइल है, तो इन दोनों को सेलिब्रिटी के तौर पे यहाँ की आवाम ले रही है। ऐसे में इनको ये उम्मीद है कि कोई जीत किसी की भी हो, लेकिन चलिए इस पर मैं आऊंगा कि हाई प्रोफाइल सीट्स पर किस तरीके के कॉम्बिनेशन या फिर किस तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन हितेश, जिस तरीके से हमने देखा राजस्थान में और शुरुआत जब चुनाव प्रचार की हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक बड़ी लीड की ओर देख रही थी, जो पर्यवेक्षक या फिर वहां पर पत्रकार जो लोग थे वो बता रहे थे। लेकिन अब चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आया है, परिस्थितियों में काफी बदलाव दिख रहा है। लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि क्रूशियल फैक्टर मुद्दे या फिर जो असंतुष्ट नेता हैं, ये दोनों बड़ा कौन है? देखिए, मैं इसको दो हिस्सों में अगर हम इस चीज़ को देखें कि पहले जो अंतर एक बड़ा दिखाई दे रहा था, तो बड़ा कैसे दिखाई दे रहा था कि कुछ लोगों ने उसे कांग्रेस की हवा है इस बार और हर बार सरकार पलटती है, इस ट्रेंड को साथ जोड़कर उसके साथ ये नैरेटिव जोड़ा गया। तो जब दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा गया तो ये लगा कि बहुत बड़ी कोई चीज़ होने वाली है। परंतु इसके बरक्स जब हम आंकड़ों को रखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले क्या था। कुल जो राजनीतिक ताकत थी उसका 10% वो परफॉर्म कर पाए थे, अगर सीटों में कन्वर्ट करने की बात कहें तो। दूसरी तरफ बीजेपी 80% वहाँ पर अपनी ताकत दिखा रही थी। ऐसे में एक के लिए ताकत दिखाने की खूब गुंजाइश है, दूसरे के लिए अगर ताकत उसकी घटती है तो गिर के जाएगी कहाँ। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं और 50 का आंकड़ा वो कांटा है जिसके थोड़ा सा इधर सरकार बनती है। तो कांग्रेस की हवा कितनी भी हो, मगर जब तक वो सुनामी नहीं होगी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली वहां पर, क्योंकि 10% से उसे 40% तक लेकर जाना। और हम जानते हैं भारतीय लोकतंत्र में विधानसभा चुनावों में 3 से 5% के अंतर से बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। ये 40% ताकत बढ़ाने की बात है, जो कि बहुत सरल नहीं दिख रही। दो चीजों को जोड़कर एक नैरेटिव था, बहुत पहले की खबरें थी, मगर उसके बाद घोषणा पत्र आना, घोषणा पत्र के बाद अलग अलग जगह पर बागियों का खड़ा होना, और बागियों के खड़े होने के साथ ही जो तीसरी सूची आई जिसका जिक्र अभी संवाददाता कर रहे थे, यूनुस खान का जो ताल ठोकना है, वो मुझे लगता है कि उसने एकदम से चीज़ें बदली हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर जो लगातार सभाएं हैं, अमित शाह, योगी जी यूपी से, ये स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ पर पूरा चीज़ें जैसे संभाली हैं। इसके साथ ही आप राजस्थान संभाग, जो राजस्थान संभाग में सबसे ज़्यादा 52 विधानसभा सीट हैं, आप ये देखिए कि
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी लगातार वो कर रहे हैं और ज़्यादा चर्चा में नहीं है। मगर आप इसके साथ में जब देखेंगे तो भाजपा की तरफ से एक बहुत व्यवस्थित तरीके से सारा कैंपेन संभाला गया है, सारे रीजन संभाले गए हैं। खासकर हाड़ौती की बात करूंगा जहां पर क्लीन स्वीप था। कितना काम करने के लिए कांग्रेस की गुंजाइश है, मुझे लगता है कि कांग्रेस फायदे में तो है, निसंदेह फायदे में है, क्योंकि वो बहुत तले में लगी हुई थी, इसलिए उसे जो भी मिलेगा वो उसका फायदा है। मगर सरकार बनाने का जो आंकड़ा है उसके लिए ये जो चमत्कार होने वाली बात है, उतना चमत्कार और उतनी चमक अभी मुझे लगता है कि इसके बारे में कहना ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, मुझे बड़ा दूर की कौड़ी लगती है। संजय, जो फैक्टर है, मैं कहूँ कि जो भी पार्टी, क्योंकि हर बार बदलने का एक रिवाज राजस्थान में हमने देखा है, लेकिन जो बात अब इस बार दिख रही है कि बड़े फैक्टर के तौर पर अगर कोई पार्टी सत्ता में आ रही है, क्या वो 2-3 बड़े फैक्टर हैं, अगर उस 7 पार्टी के खड़े होते हैं तभी उस सत्ता तक पहुंचेगी? लहर, सुनामी या फिर विरोध एक अलग है। देखिए, अगर बड़े फैक्टर की बात करें कविंद्र, तो सबसे बड़ा एक चीज, जो चीज कह रहे थे हितेश जी, कि हर 5 साल में वहां बदल जाता है, तो क्या वो रुकता है या वही परंपरा कंटिन्यूड रहती है? उस हिसाब से देखेंगे कि अगर बीजेपी का लॉस हुआ तो सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि भाई वहां की इस तरह की परंपरा है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में क्या होगा, वसुंधरा राजे ने कैसा वहां परफॉर्म किया और उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। मुझे उसमें थोड़ा संदेह है कि वसुंधरा राजे को लेकर के लोगों में नाराजगी है। अगर बीजेपी यूनाइटेड फेस लड़ रही है, मैं कहूंगा कि पिछले समय से वो चीजें काफी अच्छी हुई हैं, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि ये चुनाव हमारे लिए काफी अहम है। अमित शाह ने उस पर काफी काम किया है, तो वो जो थी वो आपको नहीं दिखेगा कि नेता सबोटाज कर रहे हैं दूसरे नेता को, वो चीज नहीं है। एकजुटता है जमीन पर, उस पे है। लोग क्या साथ में हैं, चुनाव में अंत में इंपॉर्टेंट ये होता है लोग क्या साथ में हैं। नेता साथ में आ गए, लोग क्या साथ में हैं, क्या लोग आपके कहने से वहीं मत डाल रहे हैं जहां डालना चाहिए। और एक और बड़ा फैक्टर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। मुझे जो घूमने से लगा वहां पे कि मैंने ऐसा मतलब नहीं देखा है कि चुनाव हो रहा है विधानसभा का, अगर आप मोदी की बात करें तो जो आदमी बैठा हुआ है, जो नहीं बात कर रहा है, वो मोदी मोदी करने लगता है कि मोदी को 10 साल का समय चाहिए, मतलब केंद्र में मोदी तो रहना ही चाहिए। तो आज से 4 महीने के बाद के लिए वोटर अपना मूड वो डिसाइड किया हुआ है, तो क्या वो स्प्लिट वोटिंग की तरफ जा रहा है? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हम इस पे वो चर्चा करते हैं, वो 11 दिसंबर के एनालिसिस की बात होगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि मोदी के लिए, मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, मोदी के लिए सद्भावना काफी ज्यादा है। इनफैक्ट 4.5 साल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो और लोग उसके पक्ष में जोर से बोलें, देखिए 2014 का एक मैंडेट जो था वो निगेटिविटी थी मनमोहन सिंह सरकार के लिए, मोदी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर था। तो ये चीजें मिला जुला करके वो हैं। टोंक का जिक्र किया, टोंक में देखिए विकास के पैमाने अगर बाकी जगह से आप जोड़ेंगे तो जयपुर से जो टोंक है वो ऐसी हाईवे है कि 100 किलोमीटर आप बड़े मुश्किल से 1.5 घंटे में भी जाएंगे, तो एक्सप्रेसवे है इनफैक्ट, तो बड़ी आसानी से आप पहुंच जाते हैं। तो अगर उस तरह के आप किसी पिछड़े राज्य के पैमाने से जाएंगे तो वो काफी अच्छा है। वो निश्चित रूप से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। तो मतलब कई लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसका चुनाव फंस जाएगा कैसे। You know, interesting. They're talking about factors, Hitesh. You know, what is the single largest factor that is going to influence this poll, do you think? And is there a common factor all throughout Rajasthan? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक फैक्टर काम करेगा, क्योंकि जो चुनाव के अलग अलग चरण थे वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने भी की, कोई एक मुद्दे पर गए नहीं। जैसे अभी संजय जी बात कर रहे थे, वसुंधरा राजे के खिलाफ एक माहौल था, तो पहले प्रतिपक्ष ने उसी को भुनाने की कोशिश की, परंतु सिर्फ नकारात्मकता के आधार पर आपकी गाड़ी बहुत आगे तक नहीं जा सकती है। आप क्या लेकर आए हैं, तो जब बाकी चीज़ों में सूची जारी करने में, घोषणा पत्र जारी करने में जब पिछड़े, तो लगा कि नहीं अपने एंड से भी कुछ चीज़ें कमिट करनी पड़ेंगी। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आई कि जो लुभाती तो बहुत है मगर उसका खाका पूछा जाता है। जैसे किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे मगर वो पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी देंगे मगर उसका बाकी सारे काम कहाँ से आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो नकारात्मकता से शुरू हुआ था उसमें कुछ सकारात्मकता काम की, विकास की और डिलीवरी
जो डिलीवरेबल्स हैं उसका खाका लेकर आने का दबाव राजनीति पर बढ़ा है, दोनों ही तरफ बढ़ा है। तो मुद्दे बदले हैं हर चरण के हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये एक राजनीति की परिपक्वता का भी हमें संकेत मानना चाहिए। किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे, एक हवा पर नहीं लड़ेंगे, और जो राजनीति की वास्तविक आकांक्षाएं होनी चाहिए उसे एड्रेस करने की तरफ चुनाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो राजस्थान में वो उस तरफ बढ़ता हुआ मुझे लग रहा है। सड़क की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, राणा कुंभा योजना की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो वो एक मुझे लगता है ये पॉजिटिव बात है कि सही मुद्दों की तरफ कम से कम लौटती हुई राजनीति दिख रही है, खाली नकारात्मकता यहाँ नहीं है। जी, Sanjay, you spoke about how the BJP is showing a united front in Rajasthan this time around. On the other hand, you've seen that in the Congress there is factionalism. Could that be a big factor? Yes, that's a factor in terms of morale of workers. In fact, there is a raging debate as to if, hypothetically, if Congress comes to power, who is going to be chief minister. And Ashok Gehlot is a seasoned person. He has been chief minister. People have certain opinion about him, whether you like him or dislike him. But there is a definite opinion about him. And in some pockets, that's also some sort of positive opinion also. And then you have Sachin Pilot. And on the ground, you have seen in last election, one of chief ministerial contenders, CP Joshi, lost election by 1 vote. Yes. And various factors have been attributed. No need to go in those details. But such things do matter in closely contested areas, in closely contested constituencies. Right. और क्या इस बार, क्योंकि राजस्थान में जब हम कहते हैं तो ये तो जाति भारतीय राजनीति में एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती है, लेकिन राजस्थान में कहते हैं कि इससे चढ़कर बोलती है। इस बार के चुनाव में जो जाति फैक्टर है अलग अलग रीजन में, क्योंकि कई रीजन में मैंने देखा वहां पर भले ही मुखर ना हो लोग, लेकिन कहीं अंदर खाने उसकी जहन में है, और वो राजनीति को क्या इस बार भी प्रभावित कर सकती है, करने की ताकत रखती है? नहीं, जाति बिल्कुल फैक्टर है, सभी जगह मुखर ही है। कई बार सिर्फ जाति नहीं होती, जाति एक डोमिनेंट फैक्टर है, क्योंकि किसी एक आदमी की जाति ऐसी नहीं होती जिसके 51% वोट हो, या मतलब वो 30% या 40% हो जो जितवा सके। और कहीं कहीं हमने ऐसा भी देखा है कि एक अगर संप्रदाय विशेष की कहीं बहुत है तो दूसरे बाकी लोग उसके अगेंस्ट पोलराइज होकर के उसको जितवा देते हैं। लेकिन एक जगह हमने ऐसा देखा जहां किसी जाति विशेष के व्यक्ति को टिकट डिनाई करके वो दूसरे व्यक्ति को दिया गया बीजेपी की तरफ से, जो वहां पहले जीते हुए थे, और वहां एक इंडिपेंडेंट जो उनके थे वो बीएसपी में चले गए। तो इस तरह के फैक्टर्स वहां काम करते हैं ग्राउंड पे। लेकिन कई बार ओवर आर्किंग कोई इशू होता है कि इन्हें हमें लाना है या इन्हें हमें हटाना है, तो उसमें देखिए अनलाइक पार्लियामेंट्री इलेक्शन जहां केंद्र में सरकार बनानी होती है, एमएलए से जो वोटर है उसका वास्ता थोड़ा ज़्यादा क्लोजर होता है, पुलिस के, थाने के, मुकदमे के, उसके पट्टे के, वो सब चीज़ें उसके साथ वो जुड़ी होती हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ओवर आर्किंग इशूज़ उसको क्या संभाल करके ले जाएगा, या जो आप अम्ब्रेला एक कोलिशन कास्ट का होता है वो बिल्कुल होता है, वो मैटर करता है। इस इलेक्शन में कितनी दूर तक वो लेकर के किसको जाता है, वो इस समय में मतलब मुझे लगता है कि वर्डिक्ट जो है वो थोड़ा हमें उस पर रुकना पड़ेगा। इसी जो जात की मैंने बात इसलिए, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था उससे पहले वहां पर काफ़ी बड़ा फैक्टर था कि ये जिस दल के साथ चला जाएगा, और जो आंदोलन हुए उसको लेकर, और उसके बाद उनको मनाने की कोशिश, अलग दल बनाने की घोषणा, कई सारे फैक्टर्स जुड़े हुए थे। इस बार वो हालात उससे अलग है, राजनीति उस तरह की नहीं दिख रही है, या कमोवेश वो असर डालेगी, भले ही उतनी ज़्यादा चर्चा या प्रचार में ना हो। कविंद्र जी, एक आपने ऐसी बात कही है जिस पर हम ऐसी चीज़ को उठाना चाहेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जाति है मगर जाति नहीं है राजनीति से, वो अड़ी रहती है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं बताऊं, मैं काफ़ी मुझे घूमने का मौका मिला है राजस्थान में। जो वहाँ के पके हुए राजनेता हैं वो भीड़ में पगड़ियाँ देखकर बता देते हैं कितनी जाति के कौन से लोग हैं। पगड़ियों के रंग और पगड़ी बांधने का ढंग वो भी एक तो रीजन के हिसाब से बदलता है और जातियों के हिसाब से भी बदलता है। ये मैं पिछले 15-1 साल में मैंने बार बार जो दौरे किए वहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर ये चीज़ें देखने में आई। आरक्षण वाले मुद्दे हों, राजनीतिक विधानसभा चुनाव की या और बातें हों। परंतु अभी जो आप देखेंगे
इसे मैं दो तरीके से देखता हूँ कि एक तो अभी भाजपा के बगावती बागी और कांग्रेस के बागी, ये जो बागी हैं इन्होंने जाति का समीकरण बड़े अच्छे से तोड़ दिया। कई जगह उनका एक असर का इलाका था, सारी चीज थी, टिकट नहीं मिला, मगर वो खड़े हो गए। तो अब ऐसे में जाति समीकरण कहाँ खड़ा होगा, ये देखना बड़ा अच्छा है। जाति है तो वो शायद इस तरीके से भी जाएगी, बगावत की राजनीति भी उसे उसका जगह दिखाएगी। दूसरी बात कि कहीं पर भी सभाओं में बाकी सब जगह पर जाति को लेकर आह्वान या जाति को लेकर जो जोर होता था वो नहीं है, अच्छी बात है। और जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स अच्छे राजस्थान में हम जहां तक देखेंगे वो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं। तो जाति होने के बावजूद राजनीति उससे आगे तक जा सकती है क्या, इसका भी एक उदाहरण राजस्थान बनने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। You know, Sanjay, as far as campaigning is concerned, you know, you've seen one day to go. The star campaigners have now reached Rajasthan. They were in Telangana before that. It seems like the political parties have kept the best for the last. I think you keep best for the last. In fact, last day, I think it's that momentum which you want to keep that going. You don't actually reserve for the last. So that last day there is general cacophony and that excitement among workers, that excitement among voters is there. Voters generally tend to make up their mind even before last day of campaigning goes. That tilts, I think, some scale, but generally that is about enthusiasm and vigor of the voter and of the worker. Voter in the sense larger turnout, worker in the sense they get enthused and work slightly harder on that day on the polling stations, and also asking their sympathizers to come in large numbers and vote. Star campaigners, of course, if BJP wins, credit goes to Modi and to the chief ministers. But the difference this time about Modi's campaign, he did not campaign as extensively as he used to campaign, say, for Bihar, for UP, for Karnataka, for Himachal Pradesh and other states. One of the reasons perhaps is that there are 3 chief ministerial faces in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan were incumbent chief minister and very strong faces. And even thereafter, in 4 months' time, Modi has to go for parliamentary elections. So maybe that was also a reason, but I think his campaign did make an impact. Rahul Gandhi from Congress's side, of course, he was very active. But my idea is if something turns out better for Congress in Rajasthan, I think Congress should thank somebody else than Rahul Gandhi's campaign. And who is that someone else? The incumbent. हितेश, एक आखिरी कमेंट। वाकई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए क्रिएट किया गया है, लेकिन वाकई वो फायदा पहुंचाता दिखता है फिलहाल की जो चुनाव प्रचार रहा है, या नुकसान कहीं ज्यादा दिखता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो प्रचार हुआ है, अगर फायदा पहुंचाता तब भी बराबर प्रचार सब तरफ दिखाई देता। अभी अशोक गहलोत और राहुल गांधी 2 ही चेहरे हैं, और दूसरा जो फायदा पहुंचाना है उसकी लिमिट इतनी है कि फायदा पहुंचाते पहुंचाते थक जाएंगे। 10% से आगे तक की यात्रा बहुत बड़ी है। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मोमेंटम जो है पार्टियां चाहेंगी कि वही आगे बढ़े, तो जिस समय चुनाव प्रचार थमेगा। परंतु मुझे लगता है इसके साथ ये तकनीक का दौर है, कुछ अलग तरीके की राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि पहले राजनेता, जब हम रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, जब प्रचार बंद हो जाता था, तो उसे एक टर्म थी, ये कत्ल की रात है, आज की रात को ही सारा कुछ होगा। जब बैलेट बॉक्स जाया करते थे, सारी चीज़ें, और बड़ा हैरान परेशान करने वाले काम होते थे, जहाँ शराब पहुँचानी है, जहाँ पैसा पहुँचाना है, जहाँ बाहुबली हैं, सब इस तरीके की राजनीति होती थी। आज तकनीक का दौर है, तो कुछ फेक न्यूज़ चल सकती हैं, कुछ भड़काने वाली खबरें चल सकती हैं, कोई छोटी सी इंसिडेंट को एक रंग दिया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद के जो घंटे हैं वो सूचना तंत्र की दृष्टि से वो कैसे चुनाव पर असर डल सकता है, उस दृष्टि से भी कुछ लोगों की नज़र हो सकती है। इसलिए फेक न्यूज़ और बाकी चीज़ों से सावधान रहने की सबको ज़रूरत इस दौर में बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ राजस्थान पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए कि असल में जमीन पर किस तरीके की राजनीति हो रही है और पिछली बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में समीकरण में फर्क क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। और फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।